یہ کہانی ہے ایک ایسی سرزمین کی جو صرف زمین نہیں بلکہ انبیاء کی امانت ہے۔ یہ ہے بیت المقدس، مسجد اقصی کی سرزمین، وہ مقدس جگہ جہاں سب سے پہلے عبادت کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی۔ وقت گزرتا گیا، انسان بدلتا گیا، مگر یہ زمین ہمیشہ خاص رہی۔ پھر یہاں آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے توحید کا پیغام دیا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ یہی وہ زمین ہے جہاں انبیاء آتے رہے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا جب حضرت داؤد نے اس شہر کو مضبوط بنایا اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان نے ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہ مسجد اقصی تھی، ایک ایسا مقام جہاں آسمان کی رحمتیں نازل ہوتی تھیں۔ لیکن پھر انسان نے وہی غلطی دہرائی۔ بنی اسرائیل کو یہاں بسایا گیا، انہیں نعمتیں دی گئیں، لیکن انہوں نے نافرمانی شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے نبیوں کی بات نہ مانی، یہاں تک کہ بعض انبیاء کو قتل بھی کیا۔ یہ ظلم جب حد سے بڑھا تو اللہ کا عذاب آیا۔ یہ شہر کئی بار تباہ ہوا، کبھی بابلیوں نے حملہ کیا، کبھی رومیوں نے برباد کیا۔ یہ مقدس زمین بار بار اجڑی، بار بار سنبھلی۔ پھر وقت بدلا، اسلام کا سورج طلوع ہوا، اور وہ مبارک رات آئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں مسجد اقصی لایا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے اس زمین کو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے دلوں سے جوڑ دیا۔ پھر خلافت راشدہ کا دور آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ نہ کوئی جنگ، نہ خون ریزی، صرف امن، صرف انصاف۔ مسجد اقصی کو صاف کیا گیا اور دوبارہ عبادت شروع ہوئی۔ یہ شہر امن کا گہوارہ بن گیا، مگر پھر صلیبی جنگیں شروع ہوئیں، خون بہایا گیا، لوگ قتل ہوئے، ظلم ہوا۔ لیکن پھر ایک مرد مجاہد اٹھا، صلاح الدین ایوبی۔ انہوں نے مسلمانوں کو متحد کیا اور بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ پھر ایک بار پھر یہ زمین سکون میں آ گئی۔ لیکن تاریخ کبھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ وقت گزرتا گیا، خلافت کمزور ہوتی گئی اور دشمن مضبوط ہوتے گئے۔ پھر 20ویں صدی آئی اور ایک ایسا زخم لگا جو آج تک نہیں بھرا۔ 1948 میں اسرائیل کا قیام ہوا، فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ماں اپنے بچوں کو لے کر سڑکوں پر آ گئی، بزرگ بے سہارا ہو گئے، گھر چھین لیے گئے، زمینیں قبضہ کر لی گئیں، اور پھر شروع ہوا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ، ظلم کا، بمباری کا، آنسوؤں کا۔ وقت گزرتا گیا مگر فلسطین کا درد بڑھتا گیا۔ غزہ، ایک ایسی جگہ جہاں لوگ محاصرے میں زندگیاں گزار رہے ہیں، جہاں بجلی نہیں، پانی نہیں، مگر پھر بھی امید ہے۔ پھر آئے وہ سال جنہوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، خاص طور پر 2023 سے لے کر 2026 تک۔ شدید بمباری، مسلسل حملے، گھر ملبہ بن گئے، اسکول تباہ ہو گئے، ہسپتال بھی محفوظ نہ رہے۔ رپورٹس کے مطابق 50,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ زخمی ہیں، اور ان میں زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ سوچئے، وہ بچے جو ابھی کھیلنا سیکھ رہے تھے، وہ ملبے تلے دب گئے۔ وہ مائیں جو لوریاں دے رہی تھیں، وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ اور صرف یہی نہیں، ہزاروں فلسطینی جیلوں میں قید ہیں، 5,000 سے 10,000 کے درمیان قیدی، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ ان جیلوں میں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ انسانیت کو شرمندہ کر دیتا ہے۔ انہیں گھنٹوں کھڑا رکھا جاتا ہے، نیند سے محروم رکھا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، بعض کو تو بغیر کسی مقدمے کے سالوں قید رکھا جاتا ہے۔ نہ کوئی عدالت، نہ کوئی انصاف، صرف قید، صرف تکلیف۔ باہر ان کے گھر والے ہر دن انتظار کرتے ہیں کہ شاید آج وہ واپس آئیں گے، مگر اکثر یہ انتظار ختم نہیں ہوتا۔ آج بھی فلسطین کی گلیوں میں چیخیں گونجتی ہیں، بچے اپنے والدین کو ڈھونڈتے ہیں، والدین اپنے بچوں کو ملبے میں تلاش کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں، یہ انسانیت کا امتحان ہے، اور اس سب کے دوران دنیا خاموش کھڑی ہے۔ اسرائیل کی قیادت، جس میں بن یامین نیتن یاہو کا نام سامنے آتا ہے، ان کے دور میں کئی بڑے فوجی آپریشنز ہوئے جن پر دنیا بھر میں آوازیں اٹھیں، لیکن ظلم رکھ نہ سکا۔ مگر ایک چیز ہے جو آج بھی زندہ ہے، اور وہ ہے ایمان۔ فلسطینی آج بھی مسجد اقصی کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ زمین ایک دن آزاد ضرور ہوگی۔
ये आंसू एक दिन खुशियों में बदलेंगे, ये चीखें एक दिन खामोश हो जाएंगी, और मस्जिद अक्सी फिर से अमन का मरकज बनेगी। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये अभी जारी है, और शायद उसका खूबसूरत अंजाम अभी आना बाकी है। लेकिन आज जब हम उस कहानी को देखते हैं तो दिल कांप उठता है, क्योंकि ये सिर्फ तारीख नहीं रही, ये आज की हकीकत बन चुकी है। फलस्तीन की वो जमीन जहां कभी अजानों की गूंज सुकून देती थी, आज वहां धमाकों की आवाजें गूंजती हैं। वो गलियां जहां बच्चे खेलते थे, आज वहां मिलबा है, खून से रंगी हुई मिट्टी है, और खामोशी है। आप जरा तसव्वुर करें, एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी है, वो उसे चुप करा रही है, उसे दिलासा दे रही है। अचानक एक जोरदार धमाके होता है, हर तरफ धूल, चीखें, अंधेरा, और जब धूल बैठती है तो वो माँ अपने ही बच्चे को हिला रही होती है, मगर वो बच्चा अब जवाब नहीं देता, वो खामोश हो चुका होता है। ये सिर्फ एक मंजर नहीं, ये रोज का मंजर है। फलस्तीन में हर दिन किसी न किसी माँ की गोद उजड़ती है, किसी न किसी बच्चे का बाप छन जाता है, किसी न किसी घर का चिराग बुझ जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो अभी अपने ख्वाब भी पूरे ना कर सके थे, वो मलबे के नीचे दफन हो जाते हैं। उनके खिलौने, उनके बस्ते, उनके ख्वाब, सब कुछ एक लम्हे में खत्म हो जाता है। और वो बाप जो अपने बच्चों के लिए रिज्क कमाने निकला था, वापस आता है तो अपना घर ही नहीं पाता, सिर्फ मिलबा, सिर्फ तबाही। और फिर वो इसी मलबे में अपने प्यारों को तलाश करता है। कभी किसी का हाथ मिलता है, कभी किसी का जौता, और कभी सिर्फ यादें। ये वो दर्द है जिसे अल्फाज बयान नहीं कर सकते, और जीलों के अंदर कहानी और भी ज्यादा दर्दनाक है। वो नौजवान जिन्होंने कभी आज़ादी का ख्वाब देखा था, आज तंग कमरों में कैद हैं। उन्हें मारा जाता है, उन्हें सोने नहीं दिया जाता, उन्हें अंधेरे में रखा जाता है। वो चीखते हैं मगर कोई सुनने वाला नहीं, वो इंसाफ मांगते हैं मगर कोई देने वाला नहीं। उनके माँ बाप हर दिन दरवाजे की तरफ देखते हैं कि शायद आज उनका बेटा वापस आएगा, मगर साल गुजर जाते हैं और दरवाजा वैसा ही बंद रहता है। फिलिस्तीन में जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम रह गई है। हर लम्हा खौफ है, हर लम्हा खतरा है। बच्चे जब सूते हैं तो उन्हें ये नहीं मालूम होता कि वो सुबह उठेंगे भी या नहीं, और जब वो जागते हैं तो उनकी आंखों में खौफ होता है। ऐसा खौफ जो किसी बच्चे की आंखों में नहीं होना चाहिए। लेकिन उस सब के बावजूद वो लोग टूटे नहीं हैं। वो आज भी खड़े हैं। वो आज भी मस्जिद अक्सी की तरफ देखकर कहते हैं कि ये जमीन हमारी है, ये इमानत है, और हम उसे नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें कितनी ही कुर्बानियां क्यों ना देनी पड़े, चाहे हमें कितनी ही रातें आंसुओं में क्यों ना गुजारनी पड़े। वो यकीन रखते हैं कि एक दिन ये जुल्म खत्म होगा, ये अंधेरा छुटेगा, और रोशनी वापस आएगी। और वो दिन जब मस्जिद अक्सी के सहन में फिर से सुकून होगा, वो दिन जब बच्चे खौफ के बगैर खेलेंगे, वो दिन जब माएं अपने बच्चों को हंसता हुआ देखेंगी, वो दिन इंशाअल्लाह जरूर आएगा। क्योंकि जुल्म जितना भी बड़ा हो, आखिरकार खत्म हो जाता है, और सच हमेशा जिंदा रहता है। लेकिन इस सच तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन होता है। फिलिस्तीन की सरजमीन पर यह रास्ता सिर्फ कांटों से नहीं, बल्कि जख्मों से भरा हुआ है। ऐसे जख्म जो जिस्म पर भी हैं और रूह पर भी। वो बच्चे जो स्कूल जाने के लिए निकलते हैं, उन्हें रास्ते में रोक लिया जाता है। कभी चेक पोस्ट पर घंटों खड़ा रखा जाता है, कभी बगैर किसी वजह के डराया जाता है। उनके बस्तों में किताबें होती हैं, मगर उनके दिलों में खौफ होता है। वो तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हालात उन्हें जीने भी नहीं देते। और वो नौजवान जो अपने मुस्तकबल के ख्वाब देखते हैं, उन्हें रात के अंधेरे में उठा लिया जाता है। घर के दरवाजे तोड़े जाते हैं, चीखों से फजा गूंज उठती है। माँ अपने बेटे को पकड़कर रोती है, मगर उसके हाथ छीन लिए जाते हैं। और फिर वो बेटा सालों तक वापस नहीं आता। न कोई खबर, न कोई मुलाकात, सिर्फ इंतजार। और वो माएं जिनकी आंखें दरवाजे पर लगी रहती हैं, हर दस्तक पर दिल धड़कता है कि शायद वो आ गया हो, मगर अक्सर ये उम्मीद भी टूट जाती है। फलस्तीन में सिर्फ बमबारी ही जुल्म नहीं,
बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी भी एक आजमाइश है। पानी महदूद, बिजली बंद, दवाइयां कम, हस्पताल जख्मियों से भरे हुए, मगर वसाइल खत्म। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते हैं, मगर हर जान को बचा नहीं पाते। और जब कोई बच्चा उनके हाथों में दम तोड़ता है, तो वो सिर्फ एक मरीज नहीं होता, वो एक ख्वाब होता है जो खत्म हो जाता है। और वो माएं जो अपने बच्चों को दफन करती हैं, उनके दिल के साथ उनकी दुनिया भी दफन हो जाती है। घर जो कभी हंसी से भरे होते थे, आज संसान खंड बन चुके हैं। दीवारें टूटी हुई, छतें गरी हुई, और उनके दरमियान खलौने बिखरे पड़े हैं, खामोश, बेजान, जैसे वो भी अपने मालिक का इंतजार कर रहे हों। और वो बाप जो अपने खानदान की हिफाजत करना चाहता था, आज खुद बेबस खड़ा है। न वो दुश्मन को रोक सकता है, न अपने बच्चों को बचा सकता है, सिर्फ आंखों से आंसू बहा सकता है। ये वो दर्द है जो सिर्फ देखा जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। और इस सब के दरमियान फिलिस्तीनी औरतें सबसे ज्यादा सब्र की मिसाल बनकर खड़ी हैं। वो अपने बच्चों को संभालती हैं, अपने घरों के मलबे को साफ करती हैं, और फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ते। वो अपने बच्चों को सिखाती हैं कि ये जमीन हमारी है, ये हमारी पहचान है, और हमें उसे कभी नहीं छोड़ना, चाहे हमें कितनी ही कुर्बानियां क्यों न देनी पड़े। फलस्तीन में हर दिन एक नया इम्तिहान लेकर आता है, हर रात एक नया खौफ लेकर आती है। लेकिन उस सब के बावजूद वो लोग सजदा नहीं छोड़ते, वो दुआ नहीं छोड़ते, वो अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें यकीन है कि जुल्म जितना भी बढ़ जाए, एक दिन खत्म जरूर होता है। और वो दिन जब इंसाफ आएगा, जब हक गालिब होगा, वो दिन जरूर आएगा। और वो दिन ज़रूर आएगा। लेकिन उस दिन के आने से पहले कितनी माँओं की गोदें उजड़ें, कितने घरों के चराग बुझे, कितने बच्चे यतीम हुए। ये दर्द सिर्फ वही जानते हैं जो उस आग से गुज़र रहे हैं। फ़लस्तीन की सरज़मीन पर सुबह सूरज से पहले खौफ तुलू होता है। लोग आँख खोलते हैं तो सबसे पहले आसमान को देखते हैं कि आज खामोशी होगी या फिर धमाकों की बारिश। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने परिंदों की आवाज़ से ज़्यादा ड्रोन की आवाज़ सुनी है, जिन्होंने बारिश से ज़्यादा मिसाइलों की गरज सुनी है, जिन्होंने खिलौनों से ज़्यादा मलबे के पत्थर देखे हैं। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से पूछता है, अम्मी, हमारा घर कब वापस आएगा? और माँ, जो खुद टूट चुकी होती है, वो अपने आंसू छुपाकर कहती है, जल्द बेटा, बहुत जल्द। मगर वो जानती है कि जिस घर की दीवारें गिर चुकी हूँ, वो सिर्फ ईंटों से नहीं बनता, वो यादों से बनता है, और यादें भी ज़ख्मी हो चुकी हैं। कई बाप अपने बच्चों के लिए रोटी लेने निकले और वापस आए तो गली ही ना रही, रास्ता ही ना रहा, सिर्फ धुआं, सिर्फ चीखें, सिर्फ तबाही। वो अपने हाथों से मलबा हटाते हैं, हर पत्थर उठाते वक्त दिल कांपता है कि नीचे जिंदगी होगी या लाश। कई माएँ ऐसी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को अपने हाथों से दफन किया, नन्हे कफन, नन्ही कब्रें, और उन कब्रों के पास एक माँ बैठकर कहती है, बेटा, आज भी मैंने तेरे लिए खाना बनाया था, मगर तो आया ही नहीं। ये अल्फाज पत्थर को भी रुला दें। हस्पताल, जहाँ जिंदगी बचाई जाती है, वहाँ भी दर्द चीख रहा है। जख्मी बच्चे जिनके जिस्म पर पट्टियाँ हैं, मगर असल जख्म उनके दिल पर है। एक बच्ची अपने हाथ में टूटा हुआ खिलौना पकड़े बैठी है। वो बार बार पूछती है, मेरी बहन कहाँ है? और किसी के पास जवाब नहीं, क्योंकि उसकी बहन अब मलबे के नीचे खामोश है। वो औरतें जिन्होंने अपने शौहर खो दिए, वो बुजुर्ग जिन्होंने अपनी औलाद खो दी, वो नौजवान जिन्होंने अपने ख्वाब खो दिए। हर चेहरा एक दास्तान है,